ଏମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରେଇବା, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିବା। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କାହା ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫିଲିପ କହିଦେଉଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କାର ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ଭଲ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍ ଥିଲେ ବୋଧେ ଫିଲିପ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହିଦେଲେ। ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ବାଳକର 5ଟି ରୁଟି 2ଟି ମାଛକୁ ପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କଲେ ଆଉ ବଳି ପଡ଼ିଲେ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ଯାଇ କ'ଣ କରିବେ? ଯାଜକମାନେ, ମହାଯାଜକମାନେ, ଗୁରୁମାନେ, ନେତାମାନେ ସେମାନେ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରିବାରରେ ବୋଲ, ଗ୍ରାମରେ ବୋଲ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୋଲ, ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବୋଲ, ସାନ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରୁ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଉ। ଏମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ। ସେଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଅନେକଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା, ଅନେକ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା। ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ, ଦିକନ, ପ୍ରଚାରକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, କର୍ମକର୍ତ୍ତୀ, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକାର ଆମ ସମିତିର, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, ଆମ ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ, ଆମ ପିଲାମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଅନେକଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା। ଆମମାନେ ଜାଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲେ, ସେ ପରିଚୟ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସିମନ ପିତରକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ଏବଂ ଫିଲିପ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲେ, ମସିହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଜାଣିଲେ, ସେ ଯାଇ ନିଥନିଲକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ଏବଂ ଫିଲିପ ଓ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଦିନେ କେତେକ ଗ୍ରୀକ୍ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଯୋହନ 12 ପର୍ବ 20-22 ପଦ କେ ଜଣେ ପଢ଼ିଦେବେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା, ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ହେବେ। କରଗ୍ରାହୀମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇବେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, କର୍ମକର୍ତ୍ତୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ
जे आमे पिलामानंकु जीशुंक निकट को आनिबा। जो जीशु मु प्रथमे कहूथिले सर्वशक्तिमान जीशु, तांको ठारे समस्त शक्ति रही। तांको शरीर रे शक्ति, वस्त्र रे शक्ति, छेप रे शक्ति, नाम रे शक्ति, रक्त रे शक्ति, यही प्रकार सर्वशक्तिमान ईश्वर को आमने विश्वास करुचु, उपासना करुचु, आराधना करुचु। सेई सर्वशक्तिमान जीशुंक निकट को आमान को पिला को आनिले आमर पिला माने, आमर शिशु माने, आमर बालक बालिका माने, आमर युवक युवती माने आशीर्वाद प्राप्त हेबे। से दिन शिष्य माने धमक दौछंती, से माने मनुष्य भाव रे से माने धमक देउछंती। से माने अनेकों को जीशुंक निकट को आनिबा बदल रे से माने धमक दौछंती। आमाने देखुचो मनुष्य दृष्टि रे जणे शिशु शिशु मात्र, गोटे सान पिला मात्र, मनुष्यर दृष्टिकोण आमर सीमित। आमने जहाँ देखुचु ताही, किंतु ईश्वर अंतकरण देखंती। से सर्वज्ञ ईश्वर, से वर्तमान देखंती, भूत देखंती, भविष्य को देखंती। मनुष्य दृष्टि रे गोटे पिला, गोटे बालक, गोटे शिशु शिशु मात्र, किंतु ईश्वर को दृष्टि रे जड़े शिशु जड़े महान प्रभुंकर दास हो पारे, जड़े शिशु जड़े राजा हो पारे, जड़े शिशु जड़े भाववादी हो पारे, जड़े शिशु जड़े विचार करता हो पारे। आमने जानू बालक मोसा जहाँ कि नल बण रे पकई दिया जाइतिला, मनुष्य दृष्टि रे से गोटे शिशु मात्र थिला, किंतु ईश्वर को दृष्टि रे से इस्राएल रो जड़े महान अग्रणी नेता थिले। तेणु ईश्वर तांको आश्चर्य भावे सुरक्षा देइतिले। बालक सामुएल मनुष्य दृष्टि रे बालक मात्र थिला, एलिजाजक दृष्टि रे बालक मात्र थिला, किंतु ईश्वर को दृष्टि रे से जड़े विचारकर्ता, जड़े जाजक आ जड़े भाववादी थिले, महान परमेश्वर लोक थिले। एवं जेरेमिया से दिन कहिले मु बालक मात्र। मनुष्य दृष्टि रे हुए तो से बालक थिले, किंतु ईश्वर को दृष्टि रे जेरेमिया जड़े महान भाववादी थिले। तेणु मनुष्य आमने भविष्य को देखि पारिबा नाही, मनुष्य आमने बाह्य रूप देखु, किंतु ईश्वर वर्तमान भूत भविष्य को देखते। से होछंती सर्वज्ञ ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर। तेणु गोटे पिला माने, गोटे शिशु, गोटे बालक ईश्वर को दृष्टि रे आउ बहुमूल्य। ईश्वर प्राधान्यता दियंती पिला मानकु। आमने शुणुथिलु के सिंह पालक कहते जीशु मध्य ए स्थान रे पिला मानकु प्राधान्यता दौछंती। शिष्य मानकु कहले नाई नाई तांगु मना कर नाई, से मानकु मो निकट को आसीबा को दियो। जीशु शिशु मान विषय रे कहउछंती प्रथम तो से माने स्वर्ग राज्यर अधिकारी, द्वितीय तो से माने नम्र, तृतीय तो से माने जीशुंक निकट को जीवा को योग्य, एवं शिशु माने होछंती जीशुंकर प्रतिनिधि। आमर के सिंह पालक कहते जे ए सान पिला को ग्रहण करे से मते ग्रहण करे। जीशु कहले माथ्यू 18:5 पदरे आम शुणुलु सान पिला माने होछंती जीशुंकर प्रतिनिधि, एवं सान पिला माने होछंती आंब मानकर आदर्श। प्रभु जीशु आमानक पई गोटे आदर्श कहले, एपरि सान पिला परि नहेले तुमे स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि परिबो नहीं। केवल सेतिक नुहे, आमाने माथ्यू 21:15-16 पद जदि देखिबा, से स्थान रे विजय यात्रा समय रे सान सान पिला माने जीशुंकर प्रशंसा करछंती। होसाना दाऊद संतान, होसाना दाऊद संतान बोली उच्च स्वर करछंती। सेतेबेले जाजक माने, शास्त्री माने, से माने ईर्षान्वित हो जाउछंती, आ सेमानकु विरक्त होउछंती। आ जीशु कहउछंती एई शिशु मान को द्वारा ईश्वरंकर
स्तव सिद्ध करा जायछि। शिशु मानकु ईश्वर तांकर असंपूर्ण कार्य को संपूर्ण करबा पाए व्यवहार करुछंती। छोट छोट पिला मानकु आमाने देखुचो प्रभु जीशु छोट छोट शिशु मानकु पिला मानकु प्राधान्यता देउछंती, तांको निकट को डाकुछंती। आमने देखो से कोଳରେ घेनुछंती, तांको मस्तक रे हस्त थौछंती आउ आशीर्वाद करुछंती। पिला माने होउछंती आमने जानु प्रथम तो ईश्वरंकर दत्त पुरस्कार। आमर शिशु माने पिला माने संतान संतति माने प्रथम विषय आमने मने रखिबा जे ईश्वरंकर दत्त पुरस्कार। पुरस्कार जगत रे आम पुओ झियो माने स्कूल कॉलेज रे खेल रे किंबा कोनोसी आउ प्रतियोगिता रे वक्तृत्व रे रचना रे किंबा पाठ रे कोनोसी पुरस्कार पाइले ताकू आमे घरे अति जत्न रे रखू। आमर बंधु बांधव किए आसिले मो पुओ फर्स्ट डिवीजन होइछि तांको ए पुरस्कार दियाइछि, ए प्रकार भाबे आमने गर्वर सहित कहू। तेबे भाबी देखंतु जे कि स्वर्गर परमेश्वर आमानकु एई छोटो छोटो शिशु मानकु पिला मानकु पुरस्कार स्वरूपे देइछंती। पुओ झियो पिला माने ईश्वरंकर दान। गोटे परिवार होची ईश्वरंकर दान, स्त्री होची स्वामी पाई ईश्वरंकर दान, स्वामी होची स्त्री पाई ईश्वरंकर दान, आ परिवार ईश्वरंकर दान, पिला माने ईश्वरंकर पुरस्कार। तेणु ए पिला माने होचंती बहुमूल्य। ईश्वरंक ठारू जो पुरस्कार आमे पाइचु ताकू साधारण बोली मने करिबा कि निश्चित भावे ये छोट छोट पिला माने मूल्यवान, ईश्वर को दृष्टि रे मूल्यवान, आमान को दृष्टि रे मूल्यवान होगा आवश्यक। द्वितीय रे गीत संहिता 128 गीतर 3 ख पदरे संतान मान को जीत वृक्षर चारा सहित तुलना कराई। आमे जानू जीत वृक्ष वृक्ष मान मध्य अन्यतम वृक्ष। ये जीत वृक्ष हजार हजार वर्ष बंचे, आर आयुष अधिका। एवं ये जीत वृक्ष गोटे मूल्यवान वृक्ष। जेमती आम देश रे चंदन गछ बा चंदन काठ को अति मूल्यवान बोली और ख्रिस्टियन माने ताकू पवित्र बोली व्यवहार करथांती। सेहीपरि जीत वृक्ष गोटे मूल्यवान वृक्ष। तार पत्र, तार फल, तार काठ, तार तेल मूल्यवान। औषधीय गुण रे मध्य याकू व्यवहार करा जाय थाए। एई प्रकार कि आमे जानू सोलोमन जो मंदिर निर्माण कले जेरूसलम मंदिर रे जीत वृक्षर काष्ठ रे अनेक अंश से निर्माण कले। जीत वृक्षर पत्र जाजक मानकर मुकुट रे पत्रर चिन्ह थाए। यह गोटे अति मूल्यवान वृक्ष आ गोटे पवित्र वृक्ष बोली कहले अत्युक्ति हे नहीं। पवित्र कार्य रे ए वृक्षर फल फूल पत्र व्यवहार हुए। अभिषेक समय रे जीत वृक्षर तैल अभिषेक रे व्यवहार करा जाउथला। मंदिर रे दीप जालिबा समय रे जीत वृक्षर तैल व्यवहार करा जाउथला। सेही प्रकार गोटे मूल्यवान वृक्ष सहित आम संतान संतति मान को तुलना करा जाइछि, शिशु मान को तुलना करा जाइछि, पिला मान को तुलना करा जाइछि। तेणु पिला माने आमे जाकू जगत दृष्टि रे मनुष्य दृष्टि रे सामान्य बोलू, तुच्छ बोलू, हे पिला लोक बोली भाबो, से माने सदा प्रभुकर दत्त पुरस्कार। से माने जीत वृक्षर चारा परी मूल्यवान। एवं तृतीय आम देखा से गीत संहिता 127 4 पदरे के जड़े पढ़ीदेवे। जौवनर संतान वीर पुरुषर हस्तर तीर सदृश। संतान माने तीर सहित तुलना कराउची। से तीर मध्य साधारण तीर नुहे, जे कि वीर जौवन समय वीर जार हस्तरे से तीर अच्छी,
जे कि शक्तिशाली बलवंत वीर लोक आ से तीर मारले से लक्ष्य स्थल रे पहुँचब शत्रु को पराजित करहब आ से जययुक्त हेब। एई प्रकार तीर सहित आमर संतान संतति मान को तुलना कराउची। तीर कि प्रकार शत्रु को दमन करे परास्त करे लक्ष्य स्थल रे पहुँचे आमर संतान संतति माने से प्रकार तीर सदृश। एवं चतुर्थत हितोपदेश 17 पदर लिखा जाए आमर संतान माने वृद्ध लोकर मुकुट परिवार मुकुट मंडलीर मुकुट ग्रामर मुकुट सम्मिलनी मुकुट आमर संतान संतति माने आमर पिला माने मुकुट सदृश। मुकुट जहाँकि गोटे गौरव विषय को बुझाए अधिकार को विषय शोभा को बुझाए से प्रकार आमर संतान संतति माने मुकुट स्वरूप। तेणु पुरातन नियम रे सदा प्रभु परमेश्वर यही संतान संतति मान को गुरुत्व देइछंती। आम मैंने पढ़ा आदि 18-19 पद के जने पढ़ आमने स्थान रे देखुचु सदा प्रभु अब्राहम को गोटे देवपूजक परिवार रु गोटे देवपूजक देश रु गोटे देवपूजक परिवेश रु सदा प्रभु परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देले आह्वान कले। तांकर गोटे लक्ष्य थिला तांकर गोटे उद्देश्य थिला जे प्रकार अब्राहम तांक लोक मानकु न्याय पथरे गमन करिवे न्याय विषय शिक्षा देबे तांकर संतान मान को मध्य से शिक्षा देबे संतान मान को ए स्थान रे सदा प्रभु परमेश्वर गुरुत्व देउछंती। कारण से संतान माने भविष्यतर इस्राएल रो मंडली जदि से संतान माने अब्राहम को द्वारा शिक्षा पाइबे नहीं ईश्वर को निकटवर्ती हेबे नहीं ईश्वर को परिचय पाइबे नहीं भविष्य रे इस्राएल मंडली ईश्वर को ठारू बहुत दूर को चली जीवो। सेथिपाई संतान माने परिवार रो भविष्य संतान माने मंडली रो भविष्य संतान माने देश रो भविष्य। तेणु ए बाल्य समय रो ए शिशु अवस्था रो सेमान को शिक्षा देबा पाई न्याय पथरे कड़ेबा पाई से दिन सदा प्रभु परमेश्वर अब्राहम को आह्वान करथिले दायित्व देइथिले। थर को थर प्रभु जीशु पुरातन नियम रे संतान मान को पाई मनोयोगी हेबा विषय आमने देखुचु। द्वितीय विवरण 4 पर्वर 10 पद रे देखिबे जे तुमे सदा प्रभु को भय कर एवं पिला मान को मध्य संतान मान को भय करबा सिखाओ। द्वितीय विवरण 6-7 पद रे तुमे बसिबा बेले चलिबा बेले कथा हैला बेले तुमे से विषय रे कथा हो परमेश्वर विषय रे कथा हो उद्धारकारी परमेश्वर आश्चर्य कर्मकारी परमेश्वर के विषय रे संतान मान सहित आलाप कर कथा हो शिक्षा दियो यह कहउछंती। बाइबल रे आमने देखुचु अनेक प्रभुंकर दास माने मध्य संतान मान को गुरुत्व देइछंती। उदाहरण स्वरूप दाऊद राजा गीत संहिता 34-11 पद रे कहले हे बालक माने आस मु तुमको सदा प्रभु को भय शिखेबी। राजा दाऊद जड़े योद्धा थिले युद्ध शिखेबी बोली कौन डाकू नांती आह्वान करू नांती किंबा से निपुण वीणा बादक थिले वीणा बजेबा शिखेबी बोली से डाकू नांती किंबा से जड़े उत्तम मेषपालक थिले मेष पालन करबा शिखेबी बोली डाकू नांती किंबा से जड़े प्रभावशाली दक्ष राजा थिले शासन करबा शिखेबी बोली से डाकू नांती किंबा से जड़े गीत रचक थिले गीत रचना करबा शिखेबी बोली डाकू नांती पिला मान को प्रभु विषय को भय शिखेबा पाई से आह्वान करछंती। कारण ए पिला माने
ए पिलाटी बेलरू प्रभु को भय करने न शिखिले से भविष्य विनष्ट हम से भविष्य अंधार से राजा दाऊद कहते हे बालक माने आस मु तुमको सदा प्रभु को भय शिखेबी बालक मान से गुरुत्व दौरान परमेश्वर जे प्रकार पिला संतान मान गुरुत्व देले परमेश्वर को लोक माने गुरुत्व देते से प्रकार सोलोमन हितोपदेश 22:6 पदरे कहते बालकर गंतव्य पथरे से शिक्षित कराओ जेणु से वृद्ध हेले विमुख हे ना बालक समय हूँ शिक्षार समय जागतिक शिक्षा बल आध्यात्मिक शिक्षा बल बालक समय हूँ शिक्षार समय वृद्ध हेले शिखिबे नहीं तेणु आम बालक मान शिक्षा देवार दायित्व आ कर्तव्य रही एवं जिसाई भविष्य वक्ता मध्य जिसाई 54:13 पदर कहते तुमर संतान माने सदा प्रभु द्वारा शिक्षित हे जदि आमर संतान संतति माने बालक बालिका माने सदा प्रभु निकटवर्ती हे सदा प्रभु निकट को आसबे प्रभु से मानको शिक्षित करेंगे प्रभु निकटवर्ती नहले प्रभुंर आशीर्वाद पाइपर नहीं प्रभु निकट को न आसिले प्रभु को जानीपारे ना कि प्रभु निकट को न आसिले प्रभु ठारू शिक्षित हो पारे ना प्रभु निकट को आसवा द्वारा आमने प्रभु ठारू शिक्षित होगा तेणु आमर दायित्व कर्मकर्ता मानकर दायित्व प्रभु दास दासी मानकर दायित्व आम पिला मानकु प्रभु निकट को आनिबा आमर युवक मानकु प्रभु निकट को आनिबा आमर बालक बालिका मानकु प्रभु निकट को आनिबा तेबे से माने प्रभु द्वारा शिक्षित हे नूतन नियम पाउल कहते एफिसी 6:4 पदरे पितामाता को पिला मानकु कि प्रकार भावे शिक्षा चेतना देव विरक्ति कर नहीं बरं शिक्षा चेतना रे प्रतिपालन कर तेबे से माने प्रभु को दिगरे से माने वृद्धि पाइबे आमने देखुचु मनुष्य दृष्टि रे शिशु माने पिला माने गोटे साधारण पिला मात्र किंतु ईश्वर को दृष्टि रे सेही पिला माने बहुमूल्य अटंती से माने महान महान भविष्य रे प्रभुंकर दास हो पारती आमकर के सिंह मंडल पालक कहते नारायणपुर मंडली पालक देइथिबा शिक्षा बा उदाहरण जो संडे स्कूल शिक्षक तांकर मुंडर टोपी काढ़ी पिला मानकु सम्मान जनाउथिले तांको पचारले कहीं ना यही पिला माने भविष्य रे जड़े जड़े महान नेता हेबे जड़े राजा हो पारती जड़े मंत्री हो पारती जड़े उच्च पदस्थ कर्मकर्ता हो पारती आमे जानूना जे ए पिला माने कौन हेबे किंतु प्रभु जानुछंती तेणु आमर पिला मानकु आमने प्रभु निकट को आनिबा आमर दायित्व आमर कर्तव्य प्रभु आह्वान करछंती शिशु मानकु मो निकट को आसीबा को दियो तांकु मना कर नाही जीशुंकर आह्वान शिशुंक पाई मात्र शिशु माने धमक दौरान शिशु मान को प्रत्याख्यान करुछंती मनुष्य भाव से माने कले किंतु जीशु जगत दृष्टि रे जो माने तुच्छ नीच आ जगत दृष्टि नगण्य से मान को प्रभु जीशु आह्वान करती पापी मान को आह्वान करने आसी बोली प्रभु जीशु कहले पापी माने जीशुंक निकट को गले पाप क्षमा पाती परिवर्तन होती धार्मिक होती रोगी माने जीशुंक निकट को गले रोग सुस्थ हुए स्वास्थ्य पाती रक्षा पाती शिशु माने जीशुंक निकट को जीवारु से मानकु कोଳରେ घेनिले मस्तक हस्त थोइले आशीर्वाद कले शिशु माने आशीर्वाद प्राप्त जीशुंक कोଳରେ स्थान पाइबा योग्य प्रभु जीशु आह्वान करछंती हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस मु विश्राम देवी जो माने जीशुंक निकट को आसंती से माने विश्राम पाती से माने शांति पाती जहन 6:35 पदरे जीशु कहले क्षुदित तृषित लोक मो निकट को आस तुम्हें परितृप्त हेब क्षुदित तृषित हेब नहीं परितृप्त हेब जीशुंक निकट को गले परितृप्त हेबा एवं जहन 5:40 पदरे जीशु कहले मो निकट को आसिले तुम्हें जीवन प्राप्त हेब जीशुंक निकट को आम गले जीवन प्राप्त हेबा
आम पिलामानकु नेले जीवन प्राप्त हेबे, रक्षा प्राप्त हेबे, आशीर्वाद प्राप्त हेबे। प्रभु यही संक्षिप्त वाक्य द्वारा आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद।